सब तो पहला जब असी SP ऑफिस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆ, ਇਹਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਇਆ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ SSP ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਚਰਚ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬਲੀਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੂਗੀ, ਐਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਵੇ, ਗੇਟ ਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਚੱਕਣਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਆਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਔਰ ਥਰਡ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੀ ਚਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਏ ਅੱਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੂਜੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੇਮ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੇਮ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਲ ਵੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਪੜ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਲਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਪਿਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਵੱਜ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਕੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਉੱਤੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਰੈਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਕੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚਰਚ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਟਰ ਬੁਲਾ ਰੱਖੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ। 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ SSB ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਡੇਟ ਆਏਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ VIP ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕਾਫਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਉਸ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 24 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ FIA ਨੰਬਰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। जरा हिंदी में जवाब दीजिएगा, अभी क्या पास्टर बलजिंदर सिंह की तरफ से आपको कोई धमकी आ रही है या नहीं आ रही? सर वही बोल रहा हूँ मैं, जो धमकी है घर वालों को डराया जा रहा है, इनको डराया जा रहा है, ये आज घर से बेघर हो गए हैं। किसी के धमकी कौन दे रहा है? वो खुद दे रहे हैं या फिर उनकी टीम में से कुछ लोग हैं? जो उनके लोग हैं,
जो उनके लोग हैं, उनके जो बाहर से बुला रखे हैं, वो धमकी डराना शुरू कर दिया है। खुद मेरे को कि तू पीछे हो जा, नहीं तो इल्ज़ाम तुम्हारा बुरा होगा। तो इस मामले में क्या पुलिस कोई कार्रवाई जो कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? अभी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं लग रहा हमारे को कार्रवाई कर रही है। देखो पर्चा दर्ज करने को आज 2 दिन हो गया और अरेस्ट नहीं किया इसको। अरेस्ट क्यों नहीं किया? यानी पुलिस पे पूरा ये बंदा दबाव डाल रहा है कि मेरे को अरेस्ट मत करो। आपने ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੱਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ हाँ जी, ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਸਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਜੈਂਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। आप 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं सर। आप एक कह रहे हैं कि वो ग्रुप में ये मैसेज डालते हैं और लोगों को पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये भी कहा कि जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं। बिल्कुल है मैम, देखो ये मैसेज है। देखो जब लोगों को पता ही नहीं कि वो किस पर्पस के लिए जा रहे हैं तो जो बीच में लोग हैं। जो कुछ लोग हैं मैम, ये बोल रहा मैं कुछ लोग, ये पूरे नहीं बोल रहा कि पूरी बसें भर के हथियारों से आ रही है, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ लोग हैं इसमें होते हैं, जो इसमें है, और जो मैसेज या ग्रुपों में डालते हैं कि तुम्हारे को ये सब तुम्हारी जो प्रेयर है पर्सनली प्रेयर करेंगे। कौन सी पर्सनल प्रेयर है? जिस हाथ रखे प्रेयर करता है उससे लेता है 20,000, 30,000, 45,000। आप क्या इसी में पहले काम करते थे इनके साथ? नहीं नहीं, ये पास्टर है, मैं ऐदा समाज सेवा जिला प्रधान शिवसेना से हूँ मैं। ये ऐदा मेरे पास हेल्प के लिए आए। मैं जो कपूरथला वाली लड़की उनका भी, उनके साथ में मैं जुड़ा हूँ और इनके साथ में, उनको भी मैं सामने मीडिया वाले में। मेरा सवाल इनसे है मैडम, जो बजिंदर सिंह जी वो पर्सनल प्रेयर करते हैं 25,000 जो भी करते हैं, क्या उससे मरीज ठीक होते हैं? कुछ के आप एसोसिएटेड थी ना उनसे पहले? हाँ जी, 18 साल तो आपको हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, अगर अभी जो चल रहा है कि वो झूठ बोलते हैं या ठगते हैं लोगों को, हाँ जी। तो वो अभी 2 सालों से तो ठग नहीं रहे होंगे, कई सालों से ठग रहे होंगे। तो इसकी जानकारी आपको थी कि ये ठगा जा रहा है? मेरा जो काम है वहाँ पे सिर्फ प्रार्थना करना और बच्चों को ट्रेंड करना था। वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है। जैसे बाहर काउंटर्स लगते हैं, मेरा सिर्फ अंदर का काम है। जैसे बच्चों को ट्रेंड करना, जो जैसे कोई भी पेशेंट्स आता है जस्ट उनकी प्रेयर्स करना, मेरा वो था और मैं बच्चों को ट्रेंड करती थी। नहीं, जो पेशेंट, मैडम का सवाल यही है कि जो पेशेंट आते थे, हाँ जी। जिनको ट्रेनिंग को ठीक होते थे या नहीं होते थे? जैसे हाथ रख के कुछ चाहिए। देखो जो विश्वास करते खुद भी प्रेयर्स करते हैं, लोगों के जीवन में उनके विश्वास के द्वारा भी काम होता है। तो कुछ लोग ठीक होते थे, किस तरह की ट्रेनिंग देते थे? हम तो जस्ट उनको बच्चों को ट्रेंड करते थे कि आपने बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है, और जो लोग आपके पास फ़ोन कर रहे हैं कि हमारी ये समस्या, हमारे लिए प्रार्थना करो, या कोई काउंसलिंग उनके लिए करनी है, जस्ट वो काउंसलिंग होती थी। और जैसे कि लोग चर्च में आते थे उनकी काउंसलिंग करनी, बस और कुछ नहीं। उनका सवाल ये है कि कोई जो जैसे वो फ्रॉड किस्म की कोई एक्टिविटी थी जहाँ पे जिस तरह की उसके वीडियो सामने आए हैं, जैसे अपाहिज ठीक हो गया, कैंसर पेशेंट ठीक हो गया, वो सारा जो डिपार्टमेंट है वो बच्चे अलग है, हमारा डिपार्टमेंट अलग है। क्या कभी बजिंदर सिंह ने आप लोगों से कहा कि आप वहाँ पे कर्मचारी थे, आप लोगों भाई से वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल कर लो, पास वीडियो कुछ कॉल, इच्छा शक्ति है, भगवान से ऊपर से कुछ वीडियो शक्ति कॉल है, सब कुछ बताना, ठीक है? लाइव में, ऐसा कुछ लाइव में सब कुछ बताना, ठीक कहते थे, है? कभी कहते थे कि मेरे पास ये शक्ति है, इसकी वजह से मैं ठीक कर दूंगा। वो वचनों से मोल्ड कर देते थे, क्योंकि देखो काम प्रभु करता है, कोई इंसान नहीं करता। सबसे बड़ी बात तो यही चीज़ है कि अगर उनका फेथ भी है, जो आने वाला उसका भी फेथ होता है। तो अब तो ये चीज़ें थी कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। वहाँ पे जब हम आगे जाते थे, अगर आगे हम देख रहे हैं तो लड़कियों के साथ इशारेबाजी जो भी होती थी, वो चीज़ों से जब हम इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, और ये लड़की का सामने आना, अभी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियरली सबके सामने और पूरे चर्च को पता लग रही थी कि अभी ये चीज़ें हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो रही है। और वचन के इन चीज़ों के अलावा तो इन चीज़ों के साथ कोई मैच ही नहीं था ये चीज़ों का। अभी जो है कुछ विक्टिम्स बाहर आई हैं, हाँ अभी लगभग कितनी महिलाएं हैं जो वहाँ पे पीड़ित हैं इस केस से? हाँ जी, मैंने जो भी मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ वो एक लड़की को लेके ही हुआ था, क्योंकि अभी तक वो कभी मेरी चीज़ें सामने नहीं आई थी। जब ये लड़की मेरे प्रेयर टावर की थी, मेरे परिवार में वो बच्चे मेरे साथ टच में थे, उनकी सिस्टर थी, जिसके कारण ये सारा जो भी वाद विवाद हुआ है। आप भी पीड़ित हैं, आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी क्या कहानी है? आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली माइक एक मिनट रुक जाओ भैया, एक मिनट होल्ड रखो ऐसे, ठीक है? होल्ड रखो ऐसे ही, आराम ना। जी हाँ, बोलिए। हाँ जी सर। जैसे आप बोल रहे हैं कि पैसे लिए जाते थे या कुछ भी है,
बट सबसे पहले बात होती है कि अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो अपनी इच्छा से कर रहा है। हम भी, अगर मैं बात कर रही हूँ अपनी, तो हम भी कंट्रीब्यूशन करते हैं अगर हम अपनी इच्छा से करते हैं। किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती से पैसे नहीं लिए जाते और ना ही कोई दे सकता है, सबसे बड़ी बात। और अगर आप चंगा करने, हाँ जी, आपका क्या रोल था, आप क्या काम करते मैं वहाँ पे मैनेजमेंट टीम देखती थी। जो प्रेयर टावर है, जैसे आईटी डिपार्टमेंट्स हैं और जो इनके कॉल सेंटर्स होते हैं जिस पे प्रार्थनाएं की जाती है, ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे पास कॉल्स आती थी, जिसके थ्रू अगर कोई पीड़ित है, लाइक बोल रहा है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, तो उस प्रेयर टावर को मैं हैंडल करती थी। उसके अलावा जो आपकी पैसे की ग्रीवियंस क्या है? सॉरी, आपकी क्या तकलीफ क्या है? तकलीफ, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी तकलीफ सबसे पहली है कि इसको मारा गया। मतलब ये राइट्स किसी को नहीं है हाथ उठाने का, और इस चीज़ के अगेंस्ट में पहले भी थी, जो मेरे एंड से बोला भी जाता था कि मतलब हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो ये चीज़ें होती थी वहाँ पे, बट ये होता था कि कहते हैं ना कि प्रेशर हो जाता है और दबाव ये होता है कि कुछ करना दे, क्योंकि हमारे सामने ही होता था कि किसी पे झूठे केस डाल दिए या फिर एफआईआर करवा दी। तो एक मीडियोकर फैमिली के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि कोर्ट में जाना। आज अगर मैं बोलूं कि हम अगर पुलिस स्टेशन जा भी रहे हैं ना, तो हमें इतना ऑकवर्ड लग रहा है कि उस जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से हम इतना टाइम हम ये बोल रहे थे कि नहीं, इस वीडियो को हमने नहीं देना कहीं पे भी, अगर ये हमें तंग ना करे। बट आपने कहा कि आपके साथ पहले भी मारपीट हुई है। हमारे साथ नहीं हुई है, लाइक उनके साथ, जैसे कॉपी। आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? आपने अपने साथियों को आगे क्यों नहीं बताया? अभी तो आप आए हो। सर अभी आए हैं, साथियों को अगर कोई पर्सन, अब जैसे उस लड़के को मारा, अगर वही हमारे साथ नहीं है तो आगे जाके क्या करेंगे? उसको मारा, वो साफ मुकर गया, वीडियो फुटेज है एंड दिस इज़ रियल, वो कोई फेक नहीं है, वो कोई एआई नहीं है। अगर मैं आईटी डिपार्टमेंट से हूँ ना, तो अगर एआई वाले नहीं बिकते ना, तो दिस इज़ रियल, क्योंकि उसमें इतनी पावर है, वो तो किसी को भी परचेज कर सकते हैं। केस बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उनके तो सर वो तो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि करोड़ों रुपए वहां से सर उसका एविडेंस भी होगा। हाँ, वो कह रहे हैं हम जल्द एसएसपी वो ऑफिसर्स को हमने दे रखा है। सर हमारे पास एविडेंस थे, हम लेके आए हैं। लैपटॉप में जिसके पास होते हैं ना वो लेके आता है, वो ये नहीं बोलता हम वहाँ देंगे या वहाँ देंगे। इन्होंने बोला एआई की एक वीडियो है, हमने दूसरी दे दी। इन्होंने बोला ये भी एआई की है, हमारे पास तीसरी है, जब वो लड़का दूसरे रूम में बैठ के रो रहा था सर पकड़ के, वो वीडियो भी है हमारे पास। बस उसमें वॉइस नहीं है कि वो फुटेज से हमने, जैसे कैमरा लगा होता है उसमें से हमने निकाली है, दैट्स वाई उसमें वॉइस नहीं है। ये बताइए, चर्च ऑफ ग्लोरी के अंदर आप अंदर का हिस्सा रही हैं, उस जो का सिस्टम है वहाँ का, सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वहाँ पर क्या कन्वर्जन जो हो रहा है किस रेट से हो रहा है? सर वो ना कन्वर्जन, दिस इज़ नॉट कॉल्ड कन्वर्जन। क्या क्या हो रहा है? मेरा फेथ था, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, मैं वहाँ पे गई, मुझे रिलीफ मिला, मुझे एक शांति मिली, ठीक है। क्योंकि इंसान आजकल जो भाग रहा है ना, वो शांति नहीं है। अगर मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करने से शांति मिल रही है ना, तो लोग मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गिरजाघर जा रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, देरों पे भी जा रहे हैं, जहाँ पे उन्हें शांति मिलती है वो जाते हैं। तो मुझे वहाँ से मिली, किसी को नहीं मिली वो नहीं जाता। कोई 1 महीने आता है, उसको फोर्स थोड़ी किया जाता है कि आप आओ, ये फोर्स नहीं किया जाता। मेरी इच्छा थी, मेरे को रिलीफ मिला, मेरे जीवन में गवाही बनी। मेरे को 3 साल से साइनस की प्रॉब्लम थी, 7 साल मैंने उस चीज़ का, जैसे पहले फर्स्ट स्टेज होती है, कुछ पता भी नहीं लगा क्या हुआ। उसके बाद जब मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट चलने के बाद मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ, 3-3 महीने में बेड पे रहती थी। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे गई, मैंने सेवा ज्वाइन की, ज्वाइन करने से 1 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो ही नहीं रही। आपके लिए ये ऑकवर्ड है, आई नो। आपको साइनसाइटिस था? पहले थी, काफ़ी टाइम पहले, जब मैं यहाँ पे नहीं आती थी उस टाइम थी। जैसे कोई सीज़न चेंज हो गया, साइनसाइटिस की वजह से 3 महीने बेड पे रही? 3 महीने बेड पे नहीं रही। लाइक जैसे सीज़न चेंज होता था उससे प्रॉब्लम होती है सर। जैसे मॉन्टियर गोली एक लगी होती है ना, मेरी तो बात वो, सुनो, गवाहियाँ नहीं बतानी हमने यहाँ पर, हमने वो अपनी प्रॉब्लम बतानी हाँ आप मतलब ये तो मेरी गवाही है। साइनसाइटिस से बेड पे कैसे गई? मैम बेड पे वो नहीं मैं ले रहा बोल हूँ रही वीडियो हूँ, कॉल पे, यू आर ठीक है, ऑन फोकसिंग करो। ऑन की ऑन मैं करो अपने कैमरा। जीवन की गवाही बता रही हूँ सिर्फ एक। अब कोई बात अब नहीं, गड़बड़ चल रही है वहाँ पर, हाँ, गड़बड़ हो रही है, हम जो परेशान हैं। गड़बड़ हो रही है उसके रिलेटेड आप बात कर सकते हैं। वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आप कोई भी क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बाजी एक चीज़ बताइएगा, वहाँ पे जो एक फंडिंग मिनट। वो कहाँ से आ रही है? जो बोल रहे हैं हवाला की फंडिंग है, बाहर से आ रही है, पॉलिटिकल फंडिंग है, किसी का ऊपर से हाथ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किस पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है, ऐसा कुछ है क्या? देखो जो पंजाब सरकार उसी का हाथ होगा, जो पंजाब में है उसी का हाथ होगा जी। वो कितने आश्वस्त है इस बात को लेकर के जो आप? पंजाब हाथ ना होता आज वो बंदा जेल के अंदर होता, अगर हाथ है तो बंदा बाहर है। और जो दूसरी सपोर्ट है, किसका सपोर्ट है?
सरकार जो सरकार करवा रही है जी, ये सरकार ही बोल सकते हैं, जो अरेस्ट नहीं कर रही फिलहाल तो पंजाब में सरकार ही, पंजाब में उसकी आम आदमी पार्टी सरकार और कौन सी बोल सकते हैं, और दूसरी सरकार ही नहीं है सर। मैडम एक चीज़ दसना, हाँ जी जो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ